Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I audible? One of you, please. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, you're audible. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah, I welcome you, and we are embarking on a very, very interesting journey, inshallah. Today, आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन journey पे inshallah सवार होने जा रहे हैं, और ये जो है सीरतुन नबी, the sealed nectar, also known as Ar-Rahiq al-Makhtum by Safiur Rahman al-Mubarakpuri. This book actually won the gold medal. There was a competition in which the writers, the famous writers and the scholars were asked to compile a book pertaining to the biography of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. And this writer, Safiur Rahman al-Mubarakpuri, he won the gold medal in this. And ये सबसे best compilation है. I agree there are few daif hadith in this, but I don't think so that will matter to us. अगर किसी को उसके बारे में डिटेल चाहिए होगी, if they want to confirm or they want to get into more depth, तो इंशाल्लाह मैं उन लोगों को, या इंशाल्लाह ग्रुप में I will share those details as well. लेकिन it's a huge work, but as of now we will just keep it on the side, but inshallah we will continue with this. मैं आप लोगों के साथ इसका PDF भी share करूंगी. जिनके पास hard bound book नहीं है तो they can go through the chapters or some details if they want. जिन्होंने हमारे previous 2 biographies attend की हैं of Khadija radiyallahu anha, and recently yesterday we completed alhamdulillah Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu's biography. उसकी audio recording सब कुछ मेरे YouTube channel पे है. हमारा क्लास का सिलसिला ऐसा रहेगा. Why am I repeating this? Because there are some new sisters who have joined today. So उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग जो है रोज ये 1 hour का सेशन है, which will begin say approximately from 2:05 to 10 onwards till 3 o'clock. Continuously हम जो है इसको chapter by chapter we go on reading and we keep on explaining. The medium of instruction language is English and Hindi and whatever is understandable. Last के section में हम अगर कोई doubt, कोई question, कोई discussion हो तो we have an open forum, and within a span of say 1 or 2 hours inshallah I will upload the audio on the YouTube and share the link in the group. हमारा group जो है Sisters in Islam, alhamdulillah उसमें वो सारी हम चीजें जो है वो post करते हैं regularly. During the session, if there is anything that requires additional information to be shared, वो भी मैं Sisters in Islam group में share कर देती हूँ. Certain कोई दुआ, कोई hadith, कोई references, anything is required, वो इंशाल्लाह हम उसके related session के related group में डाल देते हैं. If there is any doubt, any problems, any issues, you are free to personally message me anytime. May Allah make this easy for us, and we have to always renew our intention. Why are we doing this? Why are we learning about the life of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? अभी चूंकि ये first session है, so let us get to know each other a bit. मैं of course मैं किसी का introduction या अपना introduction में time ज़ाया नहीं करूँगी, but मुझे सिर्फ ये जानना है, if a few of you can just raise your hands and tell me what is your intention of learning the seerah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. जो reply करना चाहते हैं मुझे please unmute करें, and बारी बारी just raise your hand and please unmute your mic, and let's discuss about this whole intention of what is your reason behind learning about the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. हाँ जी, please unmute one by one, or whosoever wants to respond. Yes, Reen, go ahead. My main intention is first of all हमें तो जानना ही चाहिए Prophet Rasul sallallahu alaihi wasallam के बारे में कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, how he lived his life. जब हमें उनके बारे में पता चलेगा तब हमें ये पता चलेगा कि हमें कहाँ का करेक्शन करनी है and how we should live our life. Absolutely. उनका जो तो that is my first intention of listening to and learning of this entire thing. And number 2 is अगर मुझे पता चलेगा कि कैसे, तो I can teach others also. Correction in terms of या फिर in terms of teaching, you know, जिस चीज को भी मैं जानूं आसपास मेरे, तो I can forward the messages with reference कि हाँ मैंने यहाँ पे ऐसे पढ़े थे, and from there I'm telling it to the, you know, telling this to you. Correct. Absolutely. Very nice, mashallah. So these are 2 main things. Very good. May Allah accept it and make this path easy, inshallah, ya Rab. Yes, Afshan. Assalamu alaikum. मेरा मेन इंटेंशन है to, as she said, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अच्छी बात उनको क्या पसंद थी, how he looks, जाने उनको, ताकि हम उनके जैसे हम हमारे नस्लों को उनकी तरफ ले जा सके.
we can correctly follow him और अल्लाह के करीब हो सकें, क्योंकि वो वही करते थे सिर्फ हमारे अल्लाह ताला सुब्हान व तआला को जो पसंद था, तो हम अपनी इबादत भी बेहतरीन तरीके से कर सकें. बिल्कुल सही. And it is so rightly mentioned in the Quran also, wa innaka la'al khuluqil azim, yani he is an example, he is the standard of the character कि we, if we say that we are Muslims, हम लोग का जो first एक जो कहते हैं ना फंडामेंटल बिलीफ जो है हमारा अकीदे का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी unless and until we believe in this second part of it, we are not completing our faith, we are not completing our तौहीद. तो हमारे लिए ये इतना बड़ा नुक्ता है कि जब तक कि हम हमारे नबी की बातों को, उनके कैरेक्टर को, उनके डूज को, उनके डोंट्स को अगर नहीं समझेंगे तो हम लोगों के लिए दीन का, इस्लाम का मामला जो है वो आसान नहीं होगा. So it is very, very important for us, and we are supposed to love him more than our parents and other loved ones. तो हमें उनसे मोहब्बत कब होगी? जब हम उनके बारे में जानेंगे. Yes, अली खुसरो अली अहमद, आपने अनम्यूट किया है. You want to say something? Rin, you want to say something? You want to add something? यस, और एक चीज मुझे बोलना था, जस्ट स्ट्राइक हुआ मुझे. अगर हम किसी के बारे में ज्यादा, किसी को प्यार करने के लिए उनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है. बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कह रही हूँ. We are supposed to love, we are supposed to love मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, we are supposed to follow him. अब आप मुझे बताएं, जब आप फॉलो किसी को करना चाहते हैं तो जब तक कि आप उसके बारे में, उसके पाथ के बारे में जानेंगे नहीं, तो how will you follow him? You have to know inside out, A to Z of that person, to love him, to respect him, to follow him. इसीलिए हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैप्टर है कि हमें we have to know each and every detail. Yes, Farhat Aisha. Farhat, you raised your hand. Tell me. Okay. Husna, you want to add something there? Assalamualaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji, bole. Like, it's all in addition to what everybody else said. That's all, the facts that we have to, why we need to go through this journey again. And like the book says, it's a sealed nectar. Like, how much ever you are knowing about the Prophet ﷺ, it's like, not enough. We really know, it's just a nectar that, when you learn more, it tends to get more sweeter, Correct. whatever the lessons we learn from. Yes, mashallah. As you said, of course, there is a hikmah behind having this name as in sealed nectar. Yeah. In fact, Quran maybe there is a mention of a Rahiq al-Makhtum. If people among you have done tafsir, के ऊपर जो हम लोगों को एक जो मुकर्रब जो हैं, उनको जो तस्नीम दी जाएगी ना, that also belongs to something which is like sealed nectar, जो पीने के लिए दी जाएगी जन्नतियों को, तो वो भी जो है, it is referred to as sealed nectar. So something which is untouched, something which is pure, something which has an amazing taste, it gives you that immense pleasure. So inshallah bi'idhnillah, we will have this taste inshallah when we go through this journey. Yes, Aqila, go ahead please. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. अगर हम रसूल सल्लल्लाहु की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो हम लोग अपने दीन को और वैल्यू करेंगे कि कितनी मुसीबतों से, कितनी तकलीफों के बाद ये इस्लाम इस दुनिया में फैला है, और हमको कितनी आसानी से हम ये मुस्लिम पैदा हो गए. बिल्कुल तो एक वजह ये भी है कि हमको जरूरी है पढ़ना कि हम अपने रसूल की बायोग्राफी पढ़ें. बिल्कुल हमें पता चलेगा कि जो हमको प्लेटर में इजीली सर्व किया गया है, वो वहां तक पहुंचने के लिए कितनी जर्नी, कितनी मेहनत, कितनी मशक्कतों से आया है, कितने ज्यादा लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जिहाद और क़िताल किया है, और फिर हमारे पास आया. डेफिनेटली अ वेरी गुड पॉइंट अकीला. And one more thing is, like, he's been ranked as the topmost in that book, The 100. So imagine, like, if somebody who's not a Muslim has ranked him on the top. So we have to know more about him. Absolutely. और आप सोचें, ये जो किताब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये 171 मैन्युस्क्रिप्ट्स में से सिलेक्ट हुई है. तो यानी ये जो बुक है या ये जो राइटर है, may Allah bless him, ये बहुत बड़ा वर्क ऑफ आर्ट है. तो इसको हम लोगों को समझना, और ये हमारे हाथ में इतनी इजीली पहुंच गई है, तो इसका फायदा अगर हम ना उठाएं तो हमसे ज्यादा बेवकूफ या हमसे ज्यादा अनलकी कोई और नहीं हो सकता. इसलिए हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसको पढ़ें और बार बार याद दहानी करें, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, अपने लव्ड वंस, हमारे जो डिपेंडेंट्स है, हमारे बच्चे आल औलाद, उनके तरफ हम पहुंचाएं, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में पहुंचाएं, और फिर इसको इम्प्लीमेंट करते हुए आगे चलना है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आगे चलना है. तो इंशाल्लाह, नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, मैं ना
आप लोगों के लिए ऑथर की जो बायोग्राफी है ना वो भी इंशाल्लाह ग्रुप में पोस्ट करती हूँ, बिकॉज आई वांट यू ऑल टू गो थ्रू इट एंड अंडरस्टैंड कि एनी बुक वी टेक अप ना, वी हैव टू नो अबाउट द ऑथर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उनका अकीदा क्या था, उनके एजुकेशन क्या थी, उनके डीड्स क्या थे, जो लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट इज इंपॉर्टेंट. तो वो भी इंशाल्लाह मैं पोस्ट करूंगी, बिकॉज आई थॉट वी विल डिस्कस इट बट आई डोंट थिंक सो इट इज रिक्वायर्ड. मैं उसको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी तो यू गाइस कैन इंडिविजुअली रीड इट एंड अंडरस्टैंड. कल को आपको आपके पास एक नॉलेज रहेगी कि आपने अगर ये सैफुल मुबारकपुरी की बुक पढ़ी है तो इफ एनीबडी आस्क यू हु इज दैट, सो आपके पास चंद पॉइंट्स होने चाहिए टू डिस्कस. सो वी विल जंप स्ट्रेट टू द सब्जेक्ट बिकॉज टाइम जो है वो लिमिटेड होता है एंड दिस बुक इज क्वाइट वास्ट. इंशाल्लाह लेट्स सी how we manage it. May Allah put barakah in our time, and may Allah give us good health and good life, and may Allah make us capable कि हम जो सीखें वो अपनी लाइफ में इंशाल्लाह अपने अमल में भी हम उसको implement कर पाएं या रब. आमीन या रब. So let's begin. Location and nature of Arab tribes. Beyond, if I'm too fast or anything, do let me know, because over a period of time थोड़ा सा हमारा flow जो है वो speed पकड़ लेता है. Initially I'll be little slow, लेकिन जो लोग used to हैं after some sessions वो आप लोग भी जो हैं used to हो जाओगे थोड़ा speed के. तो इंशाल्लाह initially थोड़ा सा slow चलते हैं और फिर उसके बाद we'll pick up the pace. Location and nature of Arab tribes. Beyond a shadow of doubt, the biography of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam represents a complete picture of the magnificent divine message that he communicated in order to deliver the human race from the swamp of darkness and polytheism to the paradise of light and monotheism. यानी अब देखें कि ये एक जो जर्नी रही है ना कि अरब वर्ल्ड में जो दौरे जहलियत था वो एक अंधेरा था, वो शिर्क की वहां पर गंदगी थी, तो उसको साफ करते हुए नूर की तरफ, अकीदा तौहीद की तरफ ले जाने के लिए जिसके हाथ में मशाल पकड़ाई गई थी वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द सिलेक्टेड वन, द चोजन वन थे. An authentic and comprehensive image of this message is therefore only attainable through careful study and profound analysis of both the background and issues of such a biography. In view of this, the whole chapter is introduced here about the nature and development of Arab tribes prior to Islam, as well as the circumstances and environment that surrounded the Prophet's mission. अभी हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या चेंजेस आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम को फैलाने के बाद, क्योंकि पहले जो इनका जो कल्चर था या इनकी जो अरब की जो हालत थी या इनकी जो लोकेलिटीज थी या इनके जो कल्चर्स थे उसके अंदर अंधेरा था, उसके अंदर गुमराही थी, उसके अंदर बदकारी भरी हुई थी. अब हम देखेंगे कि वो अंधेरे से रोशनी की तरफ आने के लिए it was a long journey, और किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला guided him and he went ahead. Linguistically, the word Arab means desert. Arab का जो है लग़वी माना होता है सहरा, and barren land without water and vegetation. So it is, we all know desert सहरा क्या होता है, जहाँ पे ना पानी हो ना हरियाली हो. Ever since the dawn of history, this term has been used for the Arabian Peninsula and its people. As you all know, globally जो है वो center में है, Middle Eastern है, okay? तो west में जो है एक टिपिकल क्लाइमेट है और ईस्ट में जो है एक टिपिकल क्लाइमेट है, लेकिन सेंटर जो है जिस तरीके से अल्लाह ताला ने सिलेक्ट किया है अपने बैतुल्लाह के लिए, अपने नबी के लिए या अपनी कुरान जहां पर नाजिल हुई है उसके लिए, इट इज द सेंटर ऑफ द ग्लोब, मिडिल ईस्टर्न, विच इज अ सहरा, विच इज अ डेजर्ट. तो लग़वी माने ये हुआ कि सहरा जहां ना कोई पानी हो ना कोई हरियाली हो. The Arabian Peninsula is enclosed in the west by Red Sea and Sinai, and in the east by Arabian Gulf, in the south by Arabian Sea, which is an extension of the Indian Ocean. तो geographically हम सबको पता है कि west में जो है वो Red Sea और Sinai है, east में जो है Arabian Gulf है, south में Arabian Sea है जो कि Indian Ocean का ही extension है, और north में जो है वो शाम है, ancient Syria. Syria को previously it was referred to as Sham, or parts of Iraq. The area is estimated between 1 million and 1,300,000 square miles. Numbers याद रखने की जरूरत नहीं, just for our information. Thanks to its geographical position, the peninsula has always had great strategic importance. Considering its internal features, it comprises mostly deserts and arid areas, which made it inaccessible to foreigners and invaders and allowed its people complete liberty and independence through the ages. जहाँ पर यहाँ पर travel करना थोड़ा दुश्वारी है because of the hilly, you can say the desert mountainous area, और इसका infrastructure थोड़ा difficult है to travel and to move. लेकिन दूसरी तरफ ये जो locals
हैं, जो उनके जो locals हैं, उनके लिए ये आसानी है कि they can enjoy the liberty. वो अपनी independence आराम से enjoy कर रहे होते हैं. Despite the presence of two neighboring great empires, its external setting on the other hand caused it to be the center of the ancient world and provided it with the sea and land links with most nations at the times. Thanks to the strategic position, the Arabian Peninsula became a center for trade, culture, religion, and art. क्योंकि ये center में पड़ता है, तो definitely links through sea, समुंदर के through और road के through connections थे, and ये जो because of its location in the center, इसीलिए ये trade, culture, religion का जो है बिल्कुल epicenter बन गया था. Arab tribes. Arab people have been divided according to the lineage into 3 groups. Arabs जो है वो 3 main groups में तकसीम किए हुए थे. एक थे perished Arabs, यानी ancient Arabs जिनकी जो history है वो खत्म हो गई थी. Like if you remember the Qawm of Ad, the Qawm of Thamud, the Qawm of Tasam, Jadiz, Imlaq, ये जो थे ये यानी lost and forgotten perished Arabs की category में जाते थे. Second जो थे वो थे pure Arabs, वो नस्ल जो एकदम खालिस प्योर थी. They originated from the progeny of Ya'rub bin Yashjub bin Qahtan and were also called Qahtanian Arabs. यानी एक जो इनकी lineage थी. Yes, Reen, you have something to ask? Yeah, can you please repeat the first lineage उस category में कौन-कौन आता है? First category है perished Arabs की, जो बिल्कुल निस्तो नाबूद और खत्म हो गए थे. कौम आद, कौम थामूद, then Tasam, T-A-S-M, Tasam, then Jadis, J-A-D-I-S, Imlaq, E-M-L-A-Q, and others. ये जो है perished Arabs category है. Second category is pure Arabs, यानी जिनकी नस्ल एकदम pure lineage, एकदम uncorrupted थी, undiluted थी. इनमें कौन सी progeny थी? Ya'rub bin Yashjub bin Qahtan. You can put Qahtanis there. We still have Qahtanis in Kuwait and Saudi. ये surname हमने सुना है ना. So these are like at that point of time they were considered as pure Arabs. The third category is called Arabized Arabs. अब Arabized Arabs की category में कौन थे? They are from the progeny of Ismail and were also called Adnanian Arabs. Adnanian Arabs. Okay, ये थे कौन सी lineage से थे ये? Ismail alayhi salam वाली. Okay, now the pure Arabs, the people of Qahtan, originally ये यमन से थे. ये जो प्योर अरब्स की जो कहतानी हम बात कर रहे हैं, कहतानियन अरब्स, ये यमन से थे. और ये 2 ट्राइब इनमें थे जो बहुत फेमस थे. एक ट्राइब थी हिमयार और एक ट्राइब थी कहलान. हिमयार जो थे उनके एंसेस्टर्स कौन थे? जैद अल जमहूर, कुदाहा एंड सकासिक. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द नेम्स. ये सिर्फ हम विल जस्ट रन थ्रू इट ना, इसको मेमोराइज करके ज्यादा याद रखना है. हमने फोकस जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इर्द गिर्द को हमने फोकस करना है. ठीक है, ये सिर्फ हिस्ट्री हम कर रहे हैं. सो लेट्स जस्ट गो थ्रू इट. सो फर्स्ट प्योर अरब कहतान वाले जो थे यमन से थे. 2 ट्राइब्स थे, हिमयार एंड कहलान. हिमयार के एंसेस्टर्स का नाम जैद अल जमहूर, कुदाहा एंड सकासिक था. कहलान के अंदर कौन से एंसेस्टर्स थे? हमदान, अनमार, ताई, मुदाहिज, किंदाह, लखम, जुधम, अजद, औस, खसरज and the descendants of Japhna, the kings of ancient Syria. अब आप देख रहे हैं जो नाम हम लोग सुनते रहे हैं, खजरज, औस, अभी धीरे धीरे it will come to the surface. The Kahlan tribes emigrated from Yemen to dwell in different parts of the Arabian Peninsula prior to the Great Flood, Sail al-Arim of the Ma'arib Dam. यानी ये जो यमन के जो कहलान ट्राइब था, ये इमिग्रेट कर गया यमन से क्योंकि एक बड़ा फ्लड आया था. सेल अल-आरिम और मारिब डैम टूटने से एक फ्लड आया था. तो उस फ्लड में दे माइग्रेटेड ड्यू टू फेलियर ऑफ ट्रेड अंडर द रोमन प्रेशर एंड कंट्रोल ऑफ बोथ सी एंड लैंड रूट्स फॉलोइंग द रोमन ऑक्यूपेशन ऑफ इजिप्ट एंड सीरिया. Remember, I was telling you about the 2 major empires. So the 2 major empires were of Romans and of Persians. तो अब ये यमन से ये लोग माइग्रेट कर गए थे. उसकी 2 वजह थी. एक वजह थी because of the सैलाब that came there, and दूसरी वजह थी कि रोमन एम्पायर का जो है वो प्रेशर उन पे पड़ रहा था, and they were controlling, वो सी और लैंड, तो वो दोनों ही राउट्स को जो है कंट्रोल कर रहे थे. और उनका जो ऑक्यूपेशन हो गया था इजिप्ट और सीरिया में, इस वजह से they started migrating. Naturally enough, the competition between Kahlan and Himyar led to the evacuation of the former and the settlement of the latter in Yemen.
तो इनके भी आपस में जो थे, आपको पता है ट्राइब्स आपस में भी पावर और उसके लिए झड़प उनकी होती रहती थी। तो ये कहलान और हिमयार की भी झड़प होने लगी, एक ने दूसरे को हराया और उसने इवैक्यूएट कर दिया। तो एक ट्राइब जो है वो माइग्रेट कर गया, दूसरा ट्राइब जो है उसने सेटल अपनी यमन में कर दिया। The immigrating tribes of Kahlan can be divided into 4 groups. अब ये जो माइग्रेट कर गई थी वो कहलान की ट्राइब थी, हिमयार की ट्राइब जो थी वो यमन में रुक गई। अब यमन में जो रुक गई है उसका कैटेगरी यहाँ पर नहीं मेंशन है। कहलान जो इमिग्रेट कर गई थी उसकी 4 टाइप की सब सेक्शंस ऑफ ट्राइब्स हैं। एक जो था वो था अल अजद, वो जो थे वो यमन में घूमते रहे और अपने अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान बिन अमर मुज़ैकिया वो कहां पर जाने लगे, नॉर्थ में और ईस्ट में माइग्रेट करने लगे। ओके, और फिर कहां से वो चले, द लाबा बिन अमर लेफ्ट हिज ट्राइब अल अजद फॉर हिजाज एंड ड्वेल्ट बिटवीन थलाबिया एंड ज़ीकर। व्हेन ही गेन्ड पावर ही हेडेड फॉर मदीना एंड स्टेड देयर। Of his descendants are Aus and Khazraj, sons of Harisa bin Thalaba. अभी one of the leaders, यानी ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, नॉर्थ में और ईस्ट में जा रहे थे। तो लबा बिन अमर जो थे उनकी जो ट्राइब थी अल अजद हिजाज के लिए निकली और वो लोग थलाबिया और ज़ीकार, ये जगहों का नाम है, उधर उन्होंने अपना डेरा लगाया। फिर वो कहाँ के लिए निकले, मदीना के लिए निकले और वहीं पर ही रहने लगे। और इनकी जो आगे आने वाली जनरेशन थी वो कौन सी वाली थी, औस और खजरज वाली थी। और उनके बेटे में से फिर हमको मिले थे हारिसा बिन थलाबा। When we had done the previous biography जो हमने अबू बकर की थी उसमें we have seen हारिसा बिन थलाबा का रोल। Anyway, Harisa bin Amr, known as Khuzaha, wandered with his offspring in Hijaz. अब ये जो हारिसा बिन अमर थे वो कहाँ पर जाने लगे, हिजाज में। फिर वो मर अज जहरान में पहुंचे और उन्होंने हरम को कॉन्कर किया। Finally, they settled in Makkah after having driven away its people, the tribe of Jurhum. तो इनके आने से पहले कौन सी ट्राइब मक्का में थी, जुरहुम। उन्होंने आकर इसको कॉन्क्वेस्ट किया और जुरहुम के जो लोग थे, ट्राइब ऑफ जुरहुम थे, उनको वहां से निकाल दिया। सो इमरान बिन अमर और उनकी फैमिली वो लोग कहां पर गए, वो ओमान में गए, वेयर दे एस्टैब्लिश्ड अ ट्राइब ऑफ अजद एंड हुज ऑफस्प्रिंग इनहैबिटेड तिहामा एंड नोन एज अजद ऑफ शुआना। जफना बिन अमर एंड हिज फैमिली हेडेड फॉर सीरिया। ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब देखिए, एक पहुंचे मक्का, एक पहुंचे मदीना, एक पहुंचे हिजाज, ओके, एक पहुंचे ओमान, एक पहुंचे सीरिया। तो ये जब इमिग्रेट करे, ये सारे ट्राइब्स जो निकले थे वो धीरे धीरे करके 4 ग्रुप्स थे, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में फैलने लगे। सो ये सीरिया में जो निकले, अमर एंड हिज फैमिली, दे सेटल्ड एंड इनिशिएटेड द किंगडम ऑफ गस्सान, हु वाज सो नेम्ड आफ्टर अ स्प्रिंग ऑफ वाटर इन हिजाज वेयर दे स्टॉप्ड ऑन देयर वे ऑफ सीरिया। अब यहाँ पर कौन सी वाली किंगडम सेटल हो रही थी, किंगडम ऑफ गस्सान। उन्होंने ये नाम इसलिए रखा क्योंकि वहां पर एक स्प्रिंग था, ओके, एक वो थी, वाटर की स्प्रिंग थी हिजाज में, उससे इंस्पायर होकर उन्होंने ये नाम रखा। एंड दिस वाज ऑन देयर वे टू सीरिया। सेकंड ट्राइब जो थी वो थी लखम एंड जुधाम। इनसे बने नसर बिन रबीहा, फाउंडर ऑफ द मनादिरा किंग्स ऑफ हीरा, ये सेकंड कैटेगरी। थर्ड बनी बनु ताई, दे ऑल्सो एमिग्रेटेड नॉर्थवर्ड्स, ये नॉर्थ में गए थे, और एंड बाय द सो कॉल्ड अजा एंड सलमा माउंटेन्स, 2 माउंटेन्स थे, अजा एंड सलमा। तो अजा एंड सलमा माउंटेन्स के पास गए थे और फिर देयर आफ्टर नेम्ड ताई माउंटेन्स। उसके बाद जो चौथी कैटेगरी थी वो थी किंदा, ये बहरीन में थे, लेकिन इनको निकाल के हद्रामाउत और नजद में भेजा गया। नजद एज ऑफ नाउ अभी के उसमें है, इराक में है, वेयर दे हैड नो पावर बेस जस्ट एज दे हैड नन इन बहरीन, सो दे सेटल्ड इन नजद। तो किंदा जो है वो नजद में सेटल हो गए, बट इन्होंने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलरशिप एस्टैब्लिश की, लेकिन वो भी ज्यादा टाइम टिकी नहीं और थोड़े टाइम बाद वो भी फेड आउट हो गई। दूसरी एक ट्राइब थी जिसका नाम था हिमयार, और वो एज अ नेम ऑफ कुदाहा भी, इट वाज रिफर्ड टू एज कुदाहा एज वेल। इन्होंने भी यमन को छोड़ा और ये समावा डेजर्ट जो है, बॉर्डर है इराक में, उधर सेटल हो गए। The Arabized Arabs go back in ancestry to their great grandfather Ibrahim from a town called Ar near Kufa on the west bank of Euphrates in Iraq. अब ये जो Arabized Arabs थे
जो हम लोग थर्ड कैटेगरी जिसके बारे में पढ़ रहे थे, अरबाइज्ड अरब्स, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम में से थे और अदनानियन अरब्स में से थे. इफ यू गो बैक टू इट, तो वो ऑफ कोर्स इस्माइल अलैहिस्सलाम है, तो डेफिनेटली इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज इन्वॉल्वड इन दैट. तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ पहुंचती है. और एक जो टाउन है जिसका नाम था अर, ये टाउन जो अर है वो कुफा में है, जो कि इराक के पास यूफ्रेट्स है, वेस्ट बैंक, उधर ये इलाका पड़ता है. So excavations have brought to light many details of the town, Ibrahim's family, and the religions and social circumstances prevalent at the time. It is known that Ibrahim alayhi salam left Ar for Haran and then for Palestine. तो अभी उनकी जर्नी कैसी थी? उन्होंने अर से रवाना हुए और अर के बाद कहां पर पहुंचे? हरान, another name of a place, और फिर वहां से वो फलस्तीन में पहुंचे, which he made the headquarters for his message and traveled all over the area. फलस्तीन को उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया और वहीं से वो फिर दूसरे मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैवल करते रहे. जब वो इजिप्ट में गए तो फिरौन ने काफी सारी इविल चीजें की to his wife Sarah, but Allah subhanahu wa ta'ala saved her and the Pharaoh's wicked scheme recoiled on him. यानी if we read in detail about this we will come to know, but यहाँ पर सिर्फ उसका mention है कि उस टाइम के इजिप्ट के जो फिरौन थे उसने काफी सारी evil हरकतें की उनकी वाइफ के साथ, but अल्लाह सुब्हान ताला ने बचा दिया और फिरौन की जो है वो wicked schemes जो थी, evil schemes जो थी, वो नाकामयाब रही. He thus came to realize her strong attachment to Allah Azza wa Jal, and in acknowledgement of her grace, the Pharaoh rendered his daughter Hajra at Sarah's service. बहुत interesting story है ये कि how Hajra came into life of Ibrahim alayhi salam, and जब वो फिरौन ने, जालिम ने, जब वो समझ लिया कि अल्लाह ताला से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का या अल्लाह ताला से सारा का कनेक्शन क्या है, तो फिर उन्होंने अपनी एक बेटी जो है वो उनके सर्विस के लिए दे दी. सारा गेव हाजर टू इब्राहिम अलैहिस्सलाम एज अ वाइफ. सारा जो थी उन्होंने हाजरा को एज अ वाइफ गिफ्ट किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को. इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन में रिटर्न हो गए. हाजरा ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा किया. इस पर सारा जो है वो जेलस हो गई. यू नो फीमेल्स दे आर, यानी उनकी नॉर्मल फितरा में है. Initially she gifted, and now when when Hajra is giving birth to Ismail alayhi salam, Sarah जो है वो थोड़ी jealous हो गई. And then she forced Ibrahim alayhi salam to send Hajra and her baby away. उनको force किया कि आप जो है उनको uncultivated valley जो है हिजाज में उधर भेजें, by the sacred house, exposed to the floods from the north and south. He chose for them a place under a lofty tree near the upper side of the masjid in Makkah. अभी इब्राहिम alayhi salam ने हाजरा एंड इन्फेंट इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके रवाना हुए, जहां पर ना तो कोई इंसान थे, ना कोई भी आबादी नहीं थी. दे वर अलोन, और ना तो कोई पानी था. और फिर वो उनको वहां पर छोड़कर फलस्तीन में वापस लौट गए. सिर्फ उनके पास एक लेदर केस था और कुछ चंद खजूर और एक पानी का वेसल. अपनी बीवी और अपने इन्फेंट बच्चे को छोड़ के निकल गए. और थोड़ी ही देर में उनका पानी और खाना जो था, खजूर थे, वो खत्म हो गए. लेकिन अल्लाह ताला की नेमतों को और अल्लाह ताला के रहम को हम अच्छी तरह जानते हैं. वो किस्सा कैसे फिर हाजरा जो थी वो सफा और मरवा के पीछे दौड़ी, एंड देन फिर वो कैसे जमजम का चश्मा फूटा एंड ऑल दैट, वी ऑल नो अबाउट इट. सो वो सारा इंसिडेंट हुआ. अनदर यमनी ट्रब, एक और जो यमनी ट्रब इंपॉर्टेंट वाली थी, जुरहुम द सेकंड, वो भी आकर मक्का के पास हाजरा की परमिशन के बाद वो उधर आके रहने लगी. क्योंकि जब जमजम आ गया और फिर जैसे ही पानी आ जाता है, आपको पता है सहरा में जैसे एक मिराज बन जाता है, फिर थोड़ी सी प्लांटेशन शुरू हो जाती है, एनिमल्स एंड बर्ड्स जो है वो आने शुरू होते हैं. जहां पानी होता है वहां पर फिर हरियाली और फिर ठिकाना लोगों का और जानवरों का बनना शुरू होता है. तो ये जो ट्राइब आई थी उनके पास रहने के लिए उनकी परमिशन से, वो ये वाली यमनी ट्राइब थी जुरहुम, ठीक है, वो आकर उनकी परमिशन से उधर रहने लगी. उन्होंने उधर अपना डेरा बनाया और बसर अपना किया. ये सही अल बुखारी में भी मेंशन्ड है कि द ट्राइब हैड कम टू मक्का बिफोर इस्माइल अलैहि सलाम वाज अ यंग मैन व्हाइल दे पास थ्रू द वैली लॉन्ग बिफोर दिस इवेंट. यानी पहले एक बार वो इस वादी से गुजर चुके थे, एंड देन व्हेन हाजरा एंड इस्माइल अलैहि सलाम का डेरा वहां पे जम गया था एंड पानी एंड सब हरियाली और वेजिटेशंस हो गए थे, तब फिर दोबारा जब इनका हुआ तो दे टुक द परमिशन एंड they started living there. Ibrahim alayhi salam used to go to Makkah from time to time to see his wife and son. And Ibrahim alayhi salam जो है अपने बीवी और बेटे को मिलने
in betweens frequently आया करते थे मक्का में. The number of these journeys is still unknown, but dependable historical references have mentioned 4 instances. यानी अभी कितनी दफा वो मक्का में आए थे वो अल्लाह आलम, बट जितने हमारे पास रेफरेंसेस मिलते हैं उसके हिसाब से एटलीस्ट 4 times का रिकॉर्ड है. Allah the Sublime states in the Noble Quran that he caused Ibrahim alayhi salam to see in a dream that he was sacrificing his son Ismail alayhi salam, and therefore Ibrahim alayhi salam prepared to fulfill his order. This is mentioned in Quran, Surah number 37, 103 to 107. Please mark कर दीजिए ये सूरा, because what I would want you to do is just go back, इसकी आप अच्छे से तफसीर पढ़ें तो you will know the history much better. अच्छी स्टोरी आपको समझ आएगी और लिंक आप कर सकेंगे. Then when they had both submitted themselves to the will of Allah, and he had laid him prostrate on his forehead or on the side of his forehead for slaughtering, and we called out to him, O Ibrahim alayhi salam, you have fulfilled the dream. Verily, thus do we reward the Muhsinun, good doers who perform good deeds totally, for Allah's sake only, without showing off or to gain praise or fame, etc., and do them in accordance to Allah's order. Verily, that indeed was a manifest trial, and we ransomed him with a great sacrifice, that is a ram. And हमें पता है जब कुर्बानी का वक्त करीब आया तो उसकी जगह पे एक ram, मेंढा आ गया था, and that is how the famous story of Ibrahim alayhi salam and Ismail alayhi salam's sacrifice happened. It is mentioned in the Genesis that Ismail alayhi salam was 13 years old. Ismail alayhi salam की 13 साल थी उम्र, older than his brother Ishaq. The sequence of events in the story of the sacrifice of Ismail alayhi salam shows that it occurred before Ishaq's birth, and that Allah's promise to give Ibrahim alayhi salam another son, Ishaq, came after the narration of the whole story. तो अभी ये इस दौरान इसाक अलैहि सलाम का पैदाइश नहीं हुई थी, एंड अल्लाह ने वादा किया था इब्राहिम अलैहि सलाम के कि उनको और एक सेकंड बेटा होगा. तो अल्हम्दुलिल्लाह that happened. This story speaks of at least one journey before Ismail alayhi salam became a young man. Al-Bukhari, on the authority of Ibn Abbas, reported the other 3 journeys as a summary. यानी जो हमने 4 journeys का डिस्कस किया कि इब्राहिम अलैहि सलाम visited Ismail alayhi salam and Hajra at least 4 incidents पे, तो Al-Bukhari भी on the authority of Ibn Abbas उस चीज को mention कर रहे हैं. After Ismail alayhi salam became a young man, having learned Arabic from the tribe of Jurhum, who had great admiration and affection for him, and gave him one of the women as a wife, his mother died. Desiring to see his wife and son again, Ibrahim alayhi salam came to Makkah, and after Ismail's marriage, but he did not find him at home. एक बार ऐसा हुआ कि अब ये जो जुरहुम ट्राइब थी उनसे इस्माइल अलैहि सलाम ने अरबिक सीखी, एंड दे यूज्ड टू लव हिम अ लॉट. वो बहुत उनको एडमायर और प्यार मोहब्बत उनके तरफ दिखाते थे, एंड उनको इसी वजह से उन्होंने अपनी एक डॉटर की, यानी वो ट्राइब में से एक जुरहुम ट्राइब की एक लड़की की शादी इस्माइल अलैहि सलाम से कर दी. अब बाय दिस टाइम हाजरा died already, and इब्राहिम अलैहि सलाम उनको और अपनी वाइफ को मिलने के लिए मक्का पहुंचे, पर तब इस्माइल अलैहि सलाम घर पर नहीं थे. फिर क्या हुआ? He asked Ismail's wife about her husband and how they were doing. जैसे उन्होंने खैर खैरियत पूछी, लाइक आपको पता है कैसे आप यानी एज एन एल्डरली पर्सन आप नॉर्मली खैर खैरियत पूछेंगे, यू विल जस्ट इंक्वायर हाउ आर थिंग्स, हाउ इज लाइफ एंड एवरीथिंग. तो उन्होंने उनकी बेगम से पूछा, अपनी बहू से, तो वो स्टार्ट करी कंप्लेन करना. शी स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट पॉवर्टी, और सो ही आस्क्ड हर टू टेल इस्माइल. अभी इब्राहिम अलैहि सलाम इज अ वेरी वाइज मैन, बहुत इंटेलेक्चुअल बंदे थे, एंड ही अंडरस्टूड व्हाट इज द सिनेरियो एट होम एंड किस टाइप की सिफत ये वाइफ रखती है. तो उन्होंने एक मैसेज दिया. नाउ इट इज अ कोडेड मैसेज व्हिच ओनली अ फादर एंड सन कैन अंडरस्टैंड. उन्होंने उनको कहा कि इस्माइल अलैहि सलाम को बोलो चेंज हिज डोर स्टेप. ओके, अपने ये जो जमीन है आगे की दरवाजे की उसको बदल दें. इस्माइल अलैहि सलाम अंडरस्टूड द मैसेज, डिवोर्स्ड हिज वाइफ एंड गॉट मैरिड अगेन. अभी इसमें पॉइंट टू बी पॉन्डर्ड. मेनी ऑफ अस सी, हम लोग सारे जो हैं वो डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट सोशल स्टेटस, डिफरेंट कल्चर्स को बिलोंग करते हैं. हम जो है अल्लाह ताला ने हम सबको अलग अलग तरीके से नवाजा है, और हम कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते कंपेयर करके दूसरों के साथ कि अल्लाह ने उसको ऐसा दिया है, उसको इतना दिया है, मुझे ये दिया है, मुझे ये बीमारी है, या मुझ में ये कमियां हैं. अ पर्सन कैन बी पेसिमिस्ट एंड अ पर्सन कैन बी ऑप्टिमिस्ट. आप एक
आधे ग्लास ऑफ पानी को आधा ग्लास फुल देख सकते हो या आधा ग्लास खाली देख सकते हो. बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ बिलीवर, बीइंग अ पर्सन हु इज फॉलोइंग द रिलीजन ऑफ इस्लाम, हमारा दीन हमें क्या सिखाता है? हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि हम अल्लाह की जो नेमतें हमको मिली हैं उसका अगर हम शुक्र अदा करते रहें और उसी को पॉजिटिवली लेकर चलते रहें तो अल्लाह विल गिव मोर बरका, अल्लाह ताला उसमें और बरका डाल देंगे. Whereas on the other hand, अगर हम जो हमारे पास नहीं है उसकी कंप्लेन करते जाएंगे तो जो हमारे पास है वो भी नेमतें धीरे धीरे डिमिनिश हो जाएंगी. ये वाला चैप्टर हमको हमारे दिमाग में, हमारी लाइफ में हर वक्त हमें इम्प्लीमेंट करते हुए चलना है. सबर एंड शुक्र एंड अस्तगफार. अच्छे दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, आजमाइश है अस्तगफिरुल्लाह. दिस इज द टू की टू सक्सेस. तो एक बात हमेशा अपने जहन में गांठ मार ले, दिमाग में बिल्कुल एक नेल डाल दें कि at any given point of time, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लु हालन, अल्हम्दुलिल्लाह ततीमु बिस्सालिहात. अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की कमी नहीं करनी चाहिए. जैसे कि एक और यानी जिस मोटिवेशनल मैसेजेस आते रहते हैं उसमें यू मस्ट हैव सीन समबडी इज कंप्लेनिंग कि भाई मेरे पास एडिडास या नाइकी के शूज नहीं हैं, एंड देन सडनली आपकी एक जगह पे नजर पड़ी तो वो दूसरा बंदा उसके पैर ही नहीं है. I mean, you're complaining about the brands, you're complaining about silly, stupid, हकीर दुनियावी चीजें. लेकिन आप देखें कि आपके पास जो नेमतें दी गई हैं हम उसका शुक्र अदा नहीं कर पाते, हम अल्लाह ताला का हक अदा नहीं कर पाते, हम उस तरीके से इबादत नहीं कर पाते, हम जो है बेसिक्स नहीं कर पाते. एंड दैट इज द रीजन कि जो नाशुक्रा बंदा होता है वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, कभी भी उसको सकीनत मुतमइन्ना स्टेट नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका जो दिल का जो गड़ा है वो कभी नहीं भरने वाला. There are n number of hadith in this regard कि अगर एक पूरा उहुद पहाड़ जैसा अगर मिल जाता है सोना तो दूसरे की चाहत होती है. We have to limit our desires, we have to control our नफ्स. जब जब हमने अपनी नफ्सों को खुले धाड़ जैसे खुले सांड की तरह छोड़ दिया है तो आप जो है कभी भी मुतमईन नहीं होंगे. आपको जो है जितना अल्लाह ने नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह करना है, शुक्र अदा करना है, and then you wait and watch. अल्लाह ताला will put amazing barakah in it. May Allah make us among those कि जो हम जो है शाकिरीन हो सकें, हम जो है साबरीन हो सकें और हम जो है वो जो सकीना है उसको हम महसूस कर सकें, अपने दिल में हम इत्मीनान महसूस कर सकें. आमीन या रब. So what happened? बेटे ने जो है अपने डैड की एडवाइस, अपने वालिद की एडवाइस बिल्कुल अच्छी तरह से समझ ली और उन्होंने अपना डोर स्टेप मसलन फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स किया and he married again. According to the most common narration, he married the daughter of Mudad bin Amir, the chief of the Jurhum tribe. Once more, Ibrahim alayhi salam came to see his son, but did not find him at home. He asked his new wife the same question, upon which she thanked Allah. See, the most important word. जब दोबारा से फिर इस्माइल अलैहि सलाम ने एक मुदाद बिन अमर जो चीफ थे जुरहुम ट्राइब के, उनकी बेटी से शादी की, दोबारा से इब्राहिम अलैहि सलाम का वहां से गुजर हुआ and he came to see his son. And again, Ismail alayhi salam is not at home. And उन्होंने उनकी वाइफ से, अपनी बहू से सेम वही सवाल पूछा जिस पे उनकी वाइफ का, सेकंड वाइफ का रिएक्शन क्या था? She thanked Allah azza wa jal. Ibrahim alayhi salam asked her to tell Ismail alayhi salam to keep his doorstep. अब उन्होंने क्या कोड भेजा, क्या मैसेज दिया कि ये जो है ये दहलीज को पकड़ के रखो. ठीक है, पहली वाली दहलीज को उन्होंने कहा बदल दो, इसको कहा इसको संभाल के रखो. एंड वेंट बैक टू फलस्तीन. तो इस्माइल अलैहि सलाम गॉट द मैसेज कि दिस इज अ राइट काइंड ऑफ अ लाइफ पार्टनर. एक्चुअली एक और एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि दीन के आसानी के लिए, यानी जो हमारी क्वेस्ट है टू जन्ना, हमारी सबकी जद्दोजहद क्या है कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, अल्लाह ताला हमको जन्नतियों में बेहतरीन आला दर्जा दे, उसमें शामिल करे. लेकिन उसका पाथ जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट है. ओके, बट विद अल्लाह's हेल्प एंड हिदाया everything is easy. लेकिन इसको दुनियावी लिहाज से इजी करने के लिए if you have a very supporting spouse तो बहुत आसान हो जाता है. अब हम लोग जो है ना काफी सारे कंप्लेन, अगेन एज आई सेड, हम लोगों का एक फितरा है, वी कीप कंप्लेनिंग. किसी ना किसी जगह पर हम लोग यही कंप्लेन करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे स्पाउसेस जो हैं वो आइडियल हो, हमें हमारे दीन के लिए हमारी मदद करें, हमें हेल्प करें, हमें एड करें, असिस्ट करें. हम इल्म सीखना चाहते हैं तो हमारी हेल्प करें, हम कुछ फॉलो करना चाहते हैं तो उसमें भी हमारी हेल्प करें, हम एक दूसरे की हेल्प करें. लेकिन यकीन करें आइडियल सिचुएशन किसी की भी नहीं होती. आइडियल सिचुएशन के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत कुर्बानियां लगती हैं, बहुत दुआएं लगती हैं. माय एडवाइस टू ऑल ऑफ माय सिस्टर्स हु आर लिसनिंग राइट नाउ इज कि ये जो दुआ है ना,
रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। तशहुद में, सुजूद में, डिफरेंट औकात ऑफ दुआए कबूल में पढ़ते रहा करें, कसरत से पढ़ें, एक दूसरे के लिए दुआ किया करें, अपने स्पाउसेस के लिए दुआ किया करें। क्योंकि आप यकीन करें, जब आपकी फैमिली स्ट्रक्चर, जब आपका स्पाउस, जब आपके बच्चे इकट्ठे होते हैं ना ये जर्नी में आपके साथ, तो उसका मजा और लुत्फ ही अलग है। एंड द एंटायर माहौल जो है उसकी एक अलग खुशबू है। तो आप जो है ना इस चीज की कोशिश करें कि अगर कुछ कमी पेशी है, आई टोटली अंडरस्टैंड, हर एक लेवल ऑफ ईमान पे नहीं रहते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि सब इकट्ठे एक जमा के तौर पे रहें और अल्लाह से और कुरान से उनका रिश्ता उतना ही गहरा हो जितना आप चाहती हैं या जितना आपका है, या उससे ज्यादा हो इंशाल्लाह। लेकिन हमारे बच्चे और हमारे स्पाउसेस हमारे कुर्रतुल आयून, हमारी आंखों की ठंडक बने, हमारी आंखों की किरकिरी या चुभन ना बने, इसकी कोशिश हमको बहुत करना है। अब इसके लिए जो की पॉइंट्स है विच आई सेड इज दुआ, नंबर 1। नंबर 2 इज यू हैव टू मेक श्योर कि आपके अमाल स्ट्रेट हों, क्योंकि ये जो है ना चंद रिश्ते आजमाइश की तरह होते हैं हमारे, तो ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे अमाल जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखें। एंड बच्चों का मामला जहां तक रहा, इट्स अ पेरेंटिंग फीचर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो कुछ भी अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं आप खुद करें। दे लिसन विद देयर आईज, तो आप जो उनसे करवाना चाहती हैं आप खुद करें, दे विल कॉपी यू इंशाल्लाह इवेंचुअली। और साथ साथ में दुआ का सिलसिला कभी खत्म नहीं करना, इस्तिखारा का सिलसिला कभी खत्म नहीं करना, क्योंकि ये 1 या 2 या 3 या 4 महीने की बात नहीं है, मैं कह रही हूँ मुसलसल सालों साल करते जाना है, जब तक आपकी सांस चल रही दुआओं का सिलसिला चलने दें। क्योंकि जब आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे तो आपका जन्नत का रास्ता इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा। एंड जैसे कि हम लोगों के पास नरेशंस मिलते हैं, वीसी के जो रिलेशनशिप का मेंशन है कि जन्नत में आपको कौन मिल रहा है, आपका पार्टनर मिल रहा है, तो ये रिश्ता जो है ये बहुत बहुत डिवाइन है, इट्स अ ब्लेस्ड रिलेशनशिप। इसकी कदर करें, अपने हस्बैंड्स की कदर करें। अल्लाह ताला ने इतने मिलियंस बिलियंस में से आपको शादीशुदा बनाया, इतने मिलियन बिलियंस में से आपको माँ बाप का दर्जा दिया, तो हर नेमत का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। So third time Ibrahim alayhi salam came to Makkah to find Ismail alayhi salam sharpening an arrow under a lofty tree near Zamzam. अब जब तीसरी बार इनका आना हुआ तो सुब्हानअल्लाह इस्माइल अलैहि सलाम को उनसे मुलाकात हुई और वो जो है अपना एरो है वो शार्प कर रहे थे, अपना तीर जो है एक झाड़ के नीचे, जमजम के पास झाड़ के नीचे बैठ के अपना तीर शार्प कर रहे थे। द मीटिंग आफ्टर वेरी लॉन्ग जर्नी ऑफ सेपरेशन वाज वेरी टचिंग। इतने सालों बाद इतनी डायनामिक रीयूनियन ऑफ द फादर एंड द सन, और वो भी ऐसा सन जो इतना ड्यूटीफुल, इतना राइटियस, इतना पायस, इतना अफेक्शनेट। दिस टाइम फादर एंड सन बिल्ट अल काबा। इट वाज अमेजिंग। दोनों बाप बेटे ने मिलकर काबा को बिल्ड किया, उसके पिलर्स को रेस किए, और जैसे जैसे अल्लाह ताला की ऑर्डर्स आ रहे थे उसको वो लोग फॉलो करते रहे। एंड इब्राहिम अलैहिस्सलाम कॉल्ड पीपल टू परफॉर्म पिलग्रिमेज टू इट। सो वी ऑल नो द हिस्ट्री ऑफ काबा कि ये दोनों वालिद और बेटे ने मिलकर अल्लाह की इंस्ट्रक्शंस और मदद से काबा की तामीर की और फिर वो लोगों को pilgrimage हज के लिए बुलाने लगे। By the grace of Allah Azza wa Jal, Ismail alayhi salam had 12 sons from the daughter of Mudad. यानी इस्माइल alayhi salam के कितने थे? 12 बेटे माशाल्लाह। From the daughter of Mudad, वो जो नेक औरत थी चीफ की बेटी, उसके थ्रू। इनके नाम क्या थे? नाबिद, क़िदार, इदबाइल, मिबशाम, मिशमा, दुमा, मिचा, हुदूद, यतमा, यतूर, नाफिस and क़िदमान, and who ultimately formed 12 tribes inhabiting Makkah and trading between Yemen, Sham, Syria and Egypt. Eventually ये जो 12 बेटे थे ना, इन्हीं से ही 12 ट्राइब्स बनी, और ये ट्रेड कहाँ करते थे? मक्का से यमन में, शाम यानी सीरिया और मिस्र में। तो ये 3 जगह पर आप देखिए, ये 12 बेटों से 12 ट्राइब बनी और 3 जगहों पर इनका ट्रेडिंग चलती थी। Later on, these tribes spread all over and even outside the peninsula, after which their offsprings became untraceable except for the descendants of Nabit and Qidar. अब क्योंकि ये बिल्कुल फैल गया था, इलाके बड़े थे, तो बाकियों को ट्रेस करना बहुत मुश्किल था, लेकिन जो 2 डिसेंडेंट्स थे ना, 2 बेटे नाबित एंड क़िदार, इनकी जो थी उन लोगों ने लाइनेज को ट्रेस कर दिया। The Nabatean sons of Nabit established a flourishing civilization in the north of Hijaz. They instituted a powerful government that spread its domain over all the neighboring tribes and made Petra their capital. Petra यानी अभी जॉर्डन का किस्सा आ रहा है, जॉर्डन का एरिया। Nobody dared challenge their authority until the Romans managed to vanquish the kingdoms later. ये जो एक बेटा था ना, नाबित और क़िदार की मैं बात कर रही थी, तो नाबितिन जो थे उन्होंने हिजाज में अपनी इस्टेब्लिश की और एक अच्छी अपनी गवर्नमेंट भी बनाई, नेबरिंग ट्राइब्स को भी अपने साथ लिया, और पेट्रा जो है उसको अपना कैपिटल बनाया, और कोई भी उनको जो है
यानी उनको चैलेंज नहीं कर पा रहा था जब तक के रोमन्स नहीं आए. रोमन वाज अ वेरी बिग एम्पायर, आई हैड टोल्ड यू ऑलरेडी, रोमन्स एंड पर्शियंस. तो रोमन्स ने आकर उनकी किंगडम को तबाह किया. A group of research scholars inclined to the view that the Ghassanid kings along with the Aus and Khazraj were not Qahtanians but rather descendants of Nabit. तो अभी एक जो दूसरी किंगडम थी गसानाइद, हमने डिस्कस किया था ना, गसान की ट्राइब भी गई थी, तो ये गसानाइद वाली ट्राइब्स की बात हो रही है. तो ये जो गसानाइद किंग्स थे, ये औस और खजरज ये जो थे, ये लोग कहतानियंस नहीं थे, ये एक्चुअली नाबित के डिसेंडेंट्स हैं, the son of Ismail alayhi salam, who remained in the region. Imam al-Bukhari also inclined to this view, and Al-Hafiz ibn Hajar preferred the view that Qahtan were among the descendants of Nabit. तो ये establish हो गया कि औस और खजरज तो हैं, if you dig in, वो कहाँ पर जाकर मिलते हैं? नाबित के जाकर मिलते हैं. नाबित, the son of Ismail alayhi salam, and Ismail, the son of Ibrahim alayhi salam. Descendants of Qidar, the son of Ismail alayhi salam. अब ये जो दो के मैंने कहा था ना कि हम लोगों को लाइनेज मिल रही है नाबित और क़िदार की, तो नाबित का वी नो कहाँ तक पहुंच गया. अभी क़िदार के पास, क़िदार की लाइनेज पे जाते हैं. The descendants of Qidar, the son of Ismail alayhi salam, multiplied in number and lived in Makkah for a long time. अब ये क़िदार जो है ये मक्का में ही इनका पड़ाव था. So from them issued Adnan and his son Ma'ad, to whom Adnanian tribes trace their ancestry. तो जो क़िदार थे ये मक्का में ही थे, और मक्का से ये जो अदनानियन ट्राइब्स थी वो it goes back to Qidar. Adnan is the 21st grandfather in the series of prophetic ancestry. यानी अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखें एक पोजीशन पे, तो उसके स्टेप्स हम ऊपर लेकर जाएंगे 21 बार, यानी 21 ग्रेट 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 ग्रैंडफादर तो हमें मिलेंगे अदनान. ओके. It was said that whenever Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam spoke of his ancestry, he would stop at Adnan. यानी अदनान से ही स्टार्ट होती है. तो जब भी अगर हम पीछे लेकर जाएंगे शिजरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, तो वो जाकर कहाँ तक खत्म होती है? अदनान तक. And say genealogists tell lies and did not go further than him. इनके आगे फिर वो जो जीनियोलॉजिस्ट होते हैं जिनके पास ये नस्ल हसब की जो होती है ना, शिजरा की जो स्किल होती है, दे आर कॉल्ड जीनियोलॉजिस्ट. तो ये जो है दे टेल लाइज एंड उसके आगे वो जा ही नहीं सकते, यानी उसके आगे वो नहीं जा सकते. A group of scholars, however, favored the probability of going beyond Adnan. Considering the aforementioned hadith to be inauthentic, they went on to say that there were exactly 40 fathers between Adnan and Ibrahim. एक्चुअली जब इसमें और डिग इन किया जाए और स्कॉलर्स ने जब इसके बारे में रिसर्च की, तो वो कहते हैं ऑलमोस्ट 40 ग्रेट ग्रैंडफादर्स होने चाहिए बिटवीन अदनान एंड इब्राहिम. Nizar Mad only son had 4 sons who branched out into 4 great tribes, Iyad, Anmar, Rabia and Mudar. These last two branched into several tribes. Rabia fathered Asad, Anaza, Abdul Qais and Wail, 2 sons Bakr and Taghlib, Hanifa and many others. मैं इसको जरा quickly rush कर जाती हूँ क्योंकि I don't want you guys to get confused, but I definitely, जैसे हम हमेशा करते हैं, I want to go line by line and topic by topic, so I don't want to skip anything. So please bear with me. I know the names are really confusing. Mudar tribes branched out into 2 great divisions, Qais Island bin Mudar and tribes of Ilyas bin Mudar. Qais Island came Banu Sulaim, Banu Huwazin and Banu Ghatafan, of whom descended Abs, Dubyan, Ashja and Ghani bin Asur. From Ilyas bin Mudar came Tamim bin Murrah, Hudail bin Mudrika, Banu Asad bin Khuzaima and tribe of Kinana bin Khuzaima, of whom came to Quraysh. हम लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे. Stay with me. The descendants of the Fihr bin Malik bin An-Nadir bin Kinana, the Quraysh branched out into various tribes. The most famous were Juma, Saham, Adi, Makhzum, Tayyim, Zahra, and the tribes of Qusay bin Qilab. See, we are getting closer. Consisting of Abdud Dar bin Qusay, Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, and Abd Manaf bin Qusay. There were 4 divisions of the tribe: Abd Manaf, Abd Shams, Naufal, Mutalib, and Hashim. कुछ नाम आ रहे हैं ज़हन में? It is, however, from the family of the Hashim that Allah selected the Prophet Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. The Prophet Muhammad said, Allah selected Ismail alayhi salam from the sons of Ibrahim, Kinana from the sons of Ismail alayhi salam, Quraysh from the sons of Kinana, Hashim from the sons of Quraysh, and he selected me from the sons of Hashim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्माइल अलैहि सलाम को सिलेक्ट किया
इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, फिर किनाना सिलेक्ट किया इस्माइल अलैहिस्सलाम से, फिर कुरैश सिलेक्ट किया किनाना से, हाशिम सिलेक्ट किया कुरैश से, और कुरैश से सिलेक्ट किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. Al-Abbas bin Abdul Muttalib quoted Allah's prophets as saying, Allah created the creatures and made me among the best of them. He chose the tribes and selected me from the best whereof. And he chose families and made me among the best of them. Then he chose the households, make me among the best of their households. I am the best of them in person and the best of them in household. Yani Allah ki jo selection thi, subhanallah, best of the best of the best. Best deen, best nabi, best lineage, best kitab. Just imagine, he chose the best for us. यानी अल्लाह ताला का प्लान क्या होगा. अगर एक चीज के ऊपर हम गौर फिक्र करें, फॉर ऑल दोज हु आर बॉर्न मुस्लिम्स, आपको इस चीज का एहसास होता है कि अल्लाह ताला सिलेक्टेड यू टू बी द मुस्लिम, ही सिलेक्टेड यू टू बी द खलीफा ऑफ हिज मैसेज. यानी आपको अल्लाह की तरफ से सिलेक्शन आई है बाय डिफॉल्ट दैट यू आर अ मुस्लिम. इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. एंड फॉर ऑल दोज लकी सिस्टर्स जो माशाल्लाह रिवर्ट हुई है इस्लाम में, आप सोचें, आप यू हैव एडिशनल एक्स्ट्रा लव, बिकॉज आपके लिए और भी ज्यादा अजर है, आपके लिए और भी ज्यादा नेमतें हैं. यानी गोइंग अगेंस्ट विद द ओरिजिनल डिफॉल्ट सेटिंग, आप लोगों को अल्लाह ताला ने आपके किसी अच्छे अमल की वजह से आपके ऊपर ये रहम किया एंड यू हैव कम टू द फोल्ड ऑफ इस्लाम. दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग. अगर नेमतों में से नेमतें अगर हमें सिलेक्ट करने की या हमें सोचने की जरूरत हो हम किसकी कद्र मंजर करें, तो देखिए आप, यू आर अ बॉर्न मुस्लिम. अल्लाह ताला ने आपके लिए बेस्ट रिलीजन चूज किया है, आपको बेस्ट नबी दिया है, आपको बेस्ट किताब दिया है, आपको ये इतनी बड़ी किताब जो कुरान हमारे हाथ में है, इट्स अ बिगेस्ट मिरेकल इन योर हैंड. सो यू शुड बी थैंकफुल. बाकी सारी नेमतों को साइड में रख दें, सेहत, रिश्ते, आपको वेल्थ, आपको हेल्थ, आपको एजुकेशन, आपको खाना, आपको छत, लीव इट असाइड. लेकिन ये नेमतें आप देखें कि हाउ डिड ही बेस्टो द बेस्ट रिलीजन टू यू एंड बेस्ट ह्यूमन काइंड, द बेस्ट हाउस होल्ड. See how Allah Ta'ala has selected the Nabi for you. After increasing in number, the children of Adnan spread out over Arabia in pursuit of pastures and water. Abdul Qais, together with some tribes of Bakr bin Wa'il and Tamim, immigrated to Bahrain. Banu Hanifa bin Sa'ab bin Ali bin Bakr went to settle in Hajar. Again, they are in, यानी इनके माशाल्लाह एक एक के अगर 12-12 ऐसे औलाद हैं, and then they convert into different tribes. अलग अलग इलाकों में ये फैलते हैं. फिर ये कहाँ कहाँ पर स्प्रेड होने लगे. The capital of Yamama. All the tribes of Bakr bin Wa'il lived in the area of land that included Yamama, Bahrain, Saif, Qazima, the seashore, the outer borders of Iraq, Abla, and Hayd. Most of the, जैसे भी ये सऊदी का, यमन का, इराक का, बहरीन का, ये सारा आसपास का मिडिल ईस्ट का एरिया. Most of the tribe of Taghlib lived in the area around the Euphrates, while some of them lived in Bakr. Banu Tamim lived in the desert of Basra, Banu Sulaim in the vicinity of Medina, on the land stretching from Wadi al-Qur'an to Khaybar towards the Haram. Thaqif dwelt in Taif and Hawazin east of Makkah, near Autas to the route of Makkah to Basra. Banu Asad lived on the land east of Taima and west of Kufa, while the family of Tai lived between Banu Asad and Taima. They were at a distance of 5 days from Kufa. Dhubyan inhabited the area between Taima and Hawran. Some divisions of Kinana lived in Tihama, while some of the Quraysh dwelt in Makkah. ये जो किनाना ट्राइब है, ये भी it comes in the lineage of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तो इसमें भी 2 जगह पर ये बढ़ गए थे. एक तिहामा में थे और कुरैश जो थे वो मक्का में थे. The Quraysh remained completely disunited until Qusay bin Kilab managed to rally their ranks on honorable terms, attaching great prominence to their status and importance. तो इस तरीके से हम लोग पहुंच गए हैं कुरैश and Makkah. So this is where we have to focus on. Adnan, Kinana, Quraysh, and Makkah. Rule and government among the Arabs. When talking about the Arabs before Islam, we see that it is necessary to outline the history of rule, government, sectarianism, and the religious domination of the Arabs. अब जब हम इसके बारे में बात करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले क्या उनकी रूलिंग थी, कैसे उनकी गवर्नमेंट थी, उनका हिस्ट्री अगर हम जानने की कोशिश करें तो ये रिलीजियसली जो डोमिनेशंस थी वो अरब्स की थी. To facilitate the understanding of the emergent circumstances when Islam appeared. When the sun of Islam rose, rulers of Arabia were of 2 kinds, crown kings and who were in fact not independent, and head of tribes. यानी इनकी जो गवर्नमेंट थी इसमें 2 टाइप की कैटेगरी थी. एक तो होते थे जो क्राउन किंग होते थे, यानी फ्रॉम किंग प्रिंस जो है वो उसको इट इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेटिज्म, जहां पर वो बाय फादर एंड सन
उनका ये जो किंग्स होते थे उनका सिलसिला चलता था। दूसरा जो होता था वो होते थे हेड ऑफ द ट्राइब्स, यानी जो चीफटेंस जिसको हम बोलते हैं ना, इनका एक कबीला होता था, उसमें एक चीफ होता था, who enjoyed the same authority, यानी वो जो राजा किंग जो अथॉरिटी शेयर करता था वही इंपॉर्टेंस एक ट्राइब के जो हेड की होती थी। लेकिन ये दोनों भी जो है इंडिपेंडेंट होते थे, लेकिन कुछ ना कुछ सबमिशन यानी कुछ ना कुछ एडिशनल पॉइंट्स क्राउन किंग को मिलते थे। द क्राउन किंग्स वर दोज ऑफ यमन। तो ये क्राउन किंग्स कहाँ कहाँ पर थे? यमन में थे, शाम यानी सीरिया में थे, एंड द फैमिली ऑफ गस्सान एंड द मोनार्की ऑफ हीरा। तो ये 4 जगहों पर थे। ऑल दी अदर रूलर्स ऑफ अरब वर नॉट क्राउंड। तो सिर्फ 4 जो थे वो क्राउंड किंग्स थे, यमन के, शाम के, गस्सान के और हीरा के। और बाकी सारे कौन थे? बाकी सारे जो थे वो चीफटेंस थे, वो हेड ऑफ द ट्राइब्स थे। सो आई थिंक इंशाल्लाह टुडे वी विल क्लोज हियर। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे रूल ऑफ यमन एंड विल कंटिन्यू विद दैट द रूलरशिप इन हीरा एंड स्लोली एंड इवेंचुअली कम टुवर्ड्स द मक्का। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड, यानी हम लोगों को ना आसपास का इलाका, आसपास की चीजें का समझना बहुत जरूरी है। एंड देन स्लोली स्लोली वी विल जूम इन एंड फाइन ट्यून टू मेनली मक्का एंड टू मेनली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पॉलिटिकल सिचुएशन, वहाँ का रिलीजन, वहाँ के कल्चर, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कि हम अंधेरे को नहीं समझेंगे वी विल नॉट अंडरस्टैंड। बैठने के बाद बंद करो। हाँ जी, को बैठने दो। Okay. Actually, the moment you enter, आपका mic on हो जाता है. Is there any question you want to ask? This is time when we can discuss. Open forum for 5 minutes, then we close. Is there any question you have? किसी को कुछ सवाल, कुछ point, कोई नुक्ता, कोई चीज discuss करनी है in whatever we discussed today? Reen, Husna, Bashira, anybody? No, nothing. It's fine. Nasreen. Okay. Alhamdulillah. जज़ाकल्लाह खैरन मेरी तरफ से। Okay. So inshallah, no worries. I will upload the audio. अगर किसी का कुछ मिस हुआ या कुछ, अस्सलाम वालेकुम। yes, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. We can share it also. नसरीन, बस इससे यही पता चल रहा है कि हमें आपने जो बात कही कि शुक्र और अल्हम्दुलिल्लाह का साथ लेके चलेंगे। Yes. तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला देखें उन खातून के लिए मुझे वो बड़ी टच की ये बात कि देखें एक बात से कि उन्होंने बस शुक्र किया तो देखें अल्लाह ताला ने हर चीज चेंज कर दी। रहती दुनिया तक उनके लिए नाम उनका रहेगा। बिल्कुल। और आप देखें कि यानी वो वाली भी जो खातून जो नाशुक्री किए बना किया, उन्होंने एक सेंटेंस में बोल दिया, अपनी पूरी जिंदगी काया पलट दी उन्होंने। हाँ, तो यानी ये एक जो शुक्र की जो हम बात करें ना, तो इसके ऊपर यानी वी कैन टॉक hours and hours because इतनी सारी हदीसें, इतनी सारी वर्सेस हैं कि अल्लाह ताला राजी हैं उनसे जो शुक्र करते हैं, अल्लाह ताला उन्हीं को नवाजते हैं जो शुक्र करते हैं। तो हमें एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर कभी बीमारी, कोई मुश्किल, कोई आजमाइश आए, मैं वाई मी, जब हमारे पास नेमतें आती तब हम नहीं करते ये कंप्लेन, राइट, कि भाई मुझे क्यों अल्लाह ताला नवाज रहा है, मैं तो इतना नेक बंदा नहीं हूं, सही बात है, हम नहीं कंप्लेन करते। लेकिन हम पर जहां थोड़ी सी सख्ती आती, क्योंकि आप एक बात जहन में रखें, ये हदीस को हमेशा अपने जहन में रखा करें कि बिलीवर्स के लिए, मोमिन के लिए ये दुनिया जो है प्रिजन है, मोमिन के लिए ये दुनिया जो है वो आजमाइश, इट्स अ टेस्ट। लेकिन नॉन मुस्लिम्स के लिए ये दुनिया जन्नत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक बिगर, बेटर, फॉरएवर वाला प्लान बनाया हुआ है। तो उसके बारे में वो गोल हमको लेकर चलना है। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। ये छोटी छोटी कंफर्ट जोन और लग्जरीज में हम ज्यादा हमें खुश होने की या फैलने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को अपना गोल ध्यान में रखना है एंड हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अस्तगफार की कसरत करनी है। जिसने ये 2-3 चीजें पकड़ के चली, सबर, शुक्र, अस्तगफार, माशाल्लाह उसके लिए कामयाबी है, उसके लिए सुकून है, उसके लिए बोलते ना इत्मीनान है। और जो नाशुक्रे रहे वो कभी भी खुशी नहीं पा सकते, दे विल नेवर बी सेटिस्फाइड। सो अपने दिल में ये जो शुक्र वाला जो नुक्ता है ना, वो अल्लाह ताला आपके दिल में डाले, इसकी भी दुआ करें, क्योंकि इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ताला जितना हमको हिदायत देंगे उतना ही हमको जितनी तौफीक देंगे उतना ही हम कर सकते हैं। तो ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन अल्लाह अज़्ज़ा वजल। हमारे अपने आप को बिल्कुल जीरो रख के चलना है, आजिज बन के चलना है। एंड always be dependent on Allah Azza wa Jal to help you, to guide you, to protect you. अब आप सोचें इतने मिलियंस बिलियंस में से हम चंद कुछ 35-40 लोग, 43 लोग जमा हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोरी सुनने के लिए। तो जब अल्लाह ताला किसी के लिए खैर का मामला करते हैं तो उसको इल्म की तरफ माइल करते हैं। तो मैं अल्लाह पुट बरका इन व्हाटएवर वी आर डूइंग, और हमसे ये कबूल करें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। दिस वाज द दुआ जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम
And Ismail alayhi salam used to say while they were building the Kaaba, imagine they're building the house of Allah by the orders of Allah, by the help of Allah, and making this dua. आजिज़ी देखें कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमसे ये कबूल करें. So alhamdulillah, may Allah accept this, put barakah, and ये सिलसिला चले और हम लोगों के अंदर ये उतरे, हमारे DNA, हमारे soul में ये उतरे इंशाल्लाह. So we will meet inshallah. Today is Wednesday. Tomorrow we will have a lecture, and then Sunday ko inshallah. So subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Yes.